Good morning, students. In this lecture, we will discuss a very important topic from the chapter Chemical Control and Coordination. And this topic will be all about mechanism of hormone action. We will see how does epinephrine, which is also called as adrenaline, causes breakdown of the glycogen. That process is actually called as a glycogenolysis. Let us discuss the things in detail. See, first of all, see what does hormone mean. Hormone we have already discussed so many times. Hormone is simply defined as a chemical. It is simply defined as a chemical messenger which is produced by special types of the glands, and those glands are actually called as the endocrine. Those are called endocrine glands. These endocrine glands are also called as the ductless. They are also called as the ductless glands. Means to say, these glands will directly pour their secretion known as a hormone into the bloodstream. The bloodstream will carry that hormone towards the target organ. Okay? That is the definition of this, what we call as a hormone. Now, in the body, there are two important hormones which normally help in the breakdown of the glycogen. The first hormone is what we call as a glucagon. That is what we call as a glucagon. And the second hormone is called epinephrine. That is what we call as a epinephrine. Okay. If we will see this glucagon is a hormone that is actually produced by the alpha cells of pancreas. Okay, beta. Same is the case. If we look towards this epinephrine, which is also called as this what we call as adrenaline, it is produced by the adrenal medulla. We have discussed in the adrenal gland that adrenal gland is composed of two parts. We have the cortex and then we have the medulla. Medulla is that part of the adrenal gland which produces two important hormones. The first one is called epinephrine and the second one is called norepinephrine. Let us see their role in the breakdown of the glycogen. If we talk about this glucagon is a hormone that is produced by the alpha cells of the pancreas, and it actually stimulates what? It stimulates hyperglycemia. That is what I call as a hyperglycemia. Hyperglycemia का मतलब क्या हुआ? That means a condition which will raise the concentration of glucose in the blood. That is called beta hyperglycemia. तो ग्लूकागॉन जो होता है बेटा, इसको प्रोड्यूस करती है अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, और इस ग्लूकागॉन का काम ये होता है कि ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज की लेवल को ब्लड के अंदर. ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट दिस epinephrine is a hormone that normally works under the emergency conditions. That is why this epinephrine is also called as the 3F hormone. It is also called as a 3F hormone. And what does that 3F mean? We have discussed this so many times. One F means fear. It means simply fear. Second F means fight. Second F means fight. And the third F means what? It means flight. So that is why this epinephrine, which is also called as adrenaline, is also called as an emergency hormone. So it normally works under the emergency conditions. So what it will do? It will help in the release of glucose from which cells? From either the liver cells or we can say muscle cells. So it stimulates the hyperglycemia, as a result of which the level of the glucose rises in the blood. But जब हम बात करेंगे बेटा आपके epinephrine की, epinephrine क्या करेगा बेटा? ये release करेगा. It will help in the breakdown of the glycogen. As a result, glucose will be released into the blood, due to which the level of glucose will rise in the blood.
Another difference between the two is that if we talk about this glucagon, glucagon is beta a hormone that acts on the target organ, and that target organ is only the what we call as a liver cell. Liver cells are also called as the hepatocytes. If I talk about the epinephrine, कि epinephrine का टारगेट ऑर्गन कौन होता है? epinephrine का टारगेट ऑर्गन या तो बेटा क्या होगा, या तो बेटा लिवर सेल होगी, लिवर सेल भी हो सकती है, या और आई विल राइट डाउन मसल सेल, क्योंकि मसल सेल और लिवर सेल ही ऐसे बेटा दो सेल्स होते हैं जहां पर आपका ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, ग्लाइकोजन है क्या? ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें बेटा कि ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें, ग्लाइकोजन है क्या एक्चुअली? ग्लाइकोजन इज सिंपली ए पॉलीसैकेराइड। ये बेटा होता है क्या? ये होता है एक पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब ये हुआ कि इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, सो दिस ग्लाइकोजन इज एक्चुअली प्रेजेंट इन टू सेल्स। वन इज बेटा द लिवर सेल, एक तो होती है बेटा लिवर सेल, और दूसरी है बेटा क्या? दूसरी है बेटा मसल सेल। अब इस मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में हम यही देखेंगे कि ये जो एपिनेफ्रीन होता है, हाउ डज इट लीड्स टू ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। एक तो ये होता है कि देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल ये बेटा मान लीजिए ब्लड है। ठीक है बेटा, अगर ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है, अगर बेटा ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है, तो उस टाइम ये ग्लूकोज जो होता है, इस एक्सेसिव ग्लूकोज को भेजा जाता है कहां पर बेटा? या तो लिवर सेल्स में, या तो बेटा मसल सेल्स में, और वहां पर ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। इट इज देन कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, एंड दिस प्रोसेस इज सिंपली कॉल्ड एज द ग्लाइकोजेनेसिस। इस वाले प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बेटा बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। सो दिस इज ग्लाइकोजेनेसिस। इस ग्लाइकोजेनेसिस के लिए जो बेटा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो तो आपको पता ही होगा, दैट इज बेटा कॉल्ड एज इंसुलिन। दैट इज बेटा कॉल्ड एज इंसुलिन, which is actually produced by the beta cells of pancreas. It is produced by the beta cells of the pancreas. ओके बेटा, सेकंड जो तो इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये है कि अब अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल कम हो गई, इसका अपोजिट होगा, तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम ये चीज होगी कि जो बेटा ग्लाइकोजन होगा इन दो सेल्स में, चाहे बेटा मैं बात करूं लिवर सेल की या मैं बेटा बात करूं मसल सेल की, उस टाइम क्या होगा? ये ग्लाइकोजन विल बी देन कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, एंड दिस प्रोसेस द प्रोसेस that is actually responsible for the conversion of this glycogen into the glucose, that is actually called as a glycogenolysis. That is called as a glycogenolysis. ठीक है बेटा, अब इसी ग्लाइकोजेनोलाइसिस के लिए हमारे पास दो हार्मोन्स रिस्पांसिबल है। ठीक है बेटा, वन इज सिंपली कॉल्ड एज अ व्हाट? वन इज बेटा कॉल्ड एज अ ग्लूकागॉन, वन इज बेटा द ग्लूकागॉन, एंड सेकंड वन इज दिस स्पेशल हार्मोन व्हिच इज एक्चुअली कॉल्ड एज द एपिनेफ्रीन, जिसको हम बेटा बोलते हैं एपिनेफ्रीन। ओके बेटा, यहां तक आपको अच्छे से समझ आ होगा, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका मैकेनिज्म जो होता है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन क्या है, कैसे ये काम करता है। देखिए बेटा, अब हमें यही इसमें ये जो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन है, इसमें हम जब यही सीखेंगे कि ये ग्लाइकोजन जो है बेटा, ये कैसे कन्वर्ट होता है इनटू द ग्लूकोज, or we can say what will be the role of epinephrine in the process of glycogenolysis. Let us discuss the thing. See beta, if we talk about this is, for example, this is a plasma membrane. This is the plasma membrane of the liver cells. Okay, on the surface of these this what we call as the liver cells, we have a special receptor present, and that receptor is like that. It is a 7-pass transmembrane protein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay, beta. It is a 7-pass transmembrane receptor. Okay. Now, this receptor is actually what called? This is actually called as the GPCR. This is called beta GPCR.
What does that mean? It means guanosine, Guanosine, guanosine protein coupled receptor. Okay beta, so where is this receptor present? It's a receptor that is located on the plasma membrane of the liver cells, and it is what? It is made up of 7 alpha helices, or we can say alpha chains. Okay beta, this is the first, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, and this is 7. Okay beta, this is the structure of this what we call as a GPCR. Now if we look towards the structure of this GPCR, let me erase these things. If I look towards this GPCR, when the hormone has not this bind with this superficial receptor, there are 3 subunits which are bound with this GPCR, which is called guanosine protein coupled receptor. The one is called the first one. See, the first subunit is called beta alpha. This is for example like that. This is alpha. Then we have beta the beta, and then we have the gamma. These are the 3 subunits which are associated with this superficial receptor, and that receptor is called the GPCR. Now if we look towards the alpha subunit of this receptor, अगर हम बात करें बेटा, ये जो alpha subunit होता है आपके इस GPCR का, इसके साथ बाइंड होता है क्या? इसके साथ नॉर्मली अटैच रहता है what? GDP, that is called बेटा GDP, guanosine diphosphate. Okay beta, now one is the hormone. See, this is the receptor. This is the receptor is actually what? You will always keep in mind. Receptor is simply defined as the transmembrane protein. Transmembrane protein means it's a protein that is located on the plasma membrane of the cells. This is the definition of the receptor. अब इस रिसेप्टर के साथ क्या होता है बेटा? इसके साथ अटैच होता है क्या? लिगेंड। और जो ये लिगेंड जो मैं बना रहा हूं अभी व्हाइट से, इसको हम बेटा क्या बोलेंगे? यही तो आपका हार्मोन है which has been released by the adrenal gland, and this is what we call as a epinephrine. तो ये हो गया, इसको हम बेटा बोलते हैं लिगेंड। एपिनेफ्रिन जो है ये बेटा एक्ट करेगा एज ए लिगेंड, वाइल ये जो है ये GPCR जो है ये बेटा इसका रिसेप्टर है। रिसेप्टर और लिगेंड मिलके क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ओके बेटा, तो ये चीज होती है। अब जब ये हार्मोन इसके साथ बाइंड हो गया, यहां पर और एक इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है इसी के मेम्ब्रेन में। ऐसे करके मैं अगर बनाऊं, देखिए बेटा ये ऐसे करके इस रिसेप्टर को हम बेटा क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एडेनिलेट साइक्लेस, ADENYLATE। दिस इज कॉल्ड एडेनिलेट साइक्लेस। So what is this adenylate cyclase? It is an enzyme that is located on the plasma membrane of the liver cells. Okay बेटा, जो ही ये एपिनेफ्रिन इस GPCR रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो यहां पर इस रिसेप्टर में कन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाती है। एज ए रिजल्ट ये वाला जो सब यूनिट है ये वाला ये डिसोसिएट होता है, और ये किसके साथ बाइंड होता है? ये बाइंड होता है आपके एडेनिलेट साइक्लेस के साथ। ठीक है, लेकिन ये GDP जो है ये बेटा कन्वर्ट होता है किस में? GTP में। दिस इज द केस। ओके बेटा, तो यहां पर इसकी क्या होती है? यहां पर बेटा अगर मैं इसको काटूं, यहां पर इसकी ये डिसोसिएशन होती है। हो गया ये डिसोसिएट। ठीक है बेटा, तो एज ए रिजल्ट ये अल्फा सब यूनिट जो होता है बेटा ये किसके साथ बाइंड हो गया बेटा? ये बेटा बाइंड हो गया इसके साथ, इस एडेनिलेट साइक्लेस के साथ। जब ये एडेनिलेट साइक्लेस के साथ ये अल्फा सब यूनिट इस GPCR का बाइंड होता है, तब जाके ये एडेनिलेट साइक्लेस जो है बेटा ये एक्टिवेट होता है, ये एक्टिवेट होता है। एज ए रिजल्ट यहां पर क्या होता है बेटा? यहां पर ये चीज होती है कि जो आपका ATP होता है, जो बेटा आपका ATP होता है, ATP कन्वर्ट होता है किस में? कैंप में। दैट इज बेटा कॉल्ड एज ए कैंप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैंप? कैंप की फुल फॉर्म है बेटा साइक्लिक, CYCLIC, साइक्लिक एडेनोसिन, ADENOSINE, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके बेटा, तो ये जो है ये कैप जो है बेटा ये एक्ट करता है एज
ये एक्ट करता है एज सेकंड मैसेंजर, ये एक्ट करता है एज सेकंड मैसेंजर। जो आपका हार्मोन है, जो आपका हार्मोन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन की अगर हम बात करें, ये एक्ट करता है एज फर्स्ट, ये एक्ट करता है बेटा एक्ट एज फर्स्ट मैसेंजर, ठीक है बेटा। लेकिन कैंप की अगर हम बात करें अलॉन्ग विद, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ और मतलब सेकंड मैसेंजर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम आयन्स है, ये भी एक्ट करते हैं एज बेटा सेकंड मैसेंजर्स। आपके पास IP2 है, ठीक है बेटा, ये भी एक्ट करता है एज ए सेकंड मैसेंजर। ओके बेटा, तो क्या हुआ, जो ही हार्मोन कॉल्ड एपिनेफ्रिन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, जो अल्फा सब यूनिट था जिसके साथ अटैच था GDP, जो ही हार्मोन्स के साथ बाइंड होता है तो वो डिटैच होता है और वो बाइंड होता है एक एंजाइम से जिसको हम बेटा बोलते हैं एडिनिलेट साइक्लेस। जो ही इसके साथ ये बाइंड हो गया तो ये जो है ये एंजाइम ये बेटा एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एडिनिलेट साइक्लेस बाद में क्या करता है, यही एंजाइम ATP को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में। ओके बेटा, यहां तक हो गया क्लियर। ओके चलते हैं आगे। अब ये साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है, इसके 4 मॉलिक्यूल्स, मैं इधर डाल देता हूं 4 मॉलिक्यूल्स, इसके कैप के जो 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेटा क्या करते हैं, वो बाइंड होते हैं किसके साथ, हमारे पास एक इनएक्टिव एंजाइम होता है बेटा जिसको हम बेटा बोलते हैं प्रोटीन काइनेस, जिसको हम बेटा बोलते हैं प्रोटीन काइनेस। ये इसके साथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कैप बाइंड होते हैं इस प्रोटीन काइनेस के साथ। एज अ रिजल्ट ये एक्टिव होता है, ये नॉर्मली इनएक्टिव होता है, लेकिन जब ये 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैप इसके साथ बाइंड होते हैं तब जाके ये कन्वर्ट होता है इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, ये कन्वर्ट होता है इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, इट्स लाइक दैट। सो अगर मैं इधर जोड़ दूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए तो इधर मैं जोड़ देता हूं, ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूं प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कैप, ठीक है बेटा। जब ये 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कैप इस प्रोटीन काइनेस के साथ बाइंड होते हैं तब जाके ये कन्वर्ट होता है इनटू इट्स एक्टिवेटेड फॉर्म। सो दिस इज द प्रोटीन काइनेस हैज बीन नाउ एक्टिवेटेड। ओके बेटा, अब अगर हम बात करें आगे हम चलेंगे कि ये जो प्रोटीन काइनेस होता है, ठीक है बेटा, ये 2 एक्शंस करता है। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूं, ठीक है बेटा। तो यहां पर अब आपके पास है बेटा प्रोटीन kinase. Now this protein kinase enzyme it performs 2 important functions. देखिए बेटा, अब ये 2 important functions करता है। पहला ये कि ये जो हमारे पास एक important एंजाइम होता है जिसको हम बेटा बोलते हैं ग्लाइकोजन, that is बेटा called as a glycogen synthetase। ये ग्लाइकोजन सिंथेटेज जो होता है ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है इन द एक्टिव फॉर्म, इन द एक्टिव फॉर्म। तो ये प्रोटीन काइनेस क्या करता है, ये इसकी बेटा फॉस्फोराइलेशन करता है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये हुआ कि इसके साथ अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप। एज अ रिजल्ट जब इस ग्लाइकोजन सिंथेटेज के साथ फॉस्फेट ग्रुप बेटा अटैच होता है तो ये क्या बन जाता है, ये इनएक्टिव बन जाता है। देखिए बेटा, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास बेटा ग्लाइकोजन सिंथेटेज है, इसके साथ बेटा ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, उसी को तो हम बेटा बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। काइनेस का पता होना चाहिए कि काइनेस व्हाट डज एक्चुअली मीन। काइनेस इज उन एंजाइम्स को बोलते हैं जो फॉस्फोराइलेशन करते हैं। फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये हुआ जो फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करते हैं। लेकिन क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये फॉस्फेट ग्रुप आता कहां से है, तो वो जो हमारे पास ATP होता है, ATP से ATP कन्वर्ट होता है ADP में और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, वही फॉस्फेट इसके साथ अटैच होता है। जब ग्लाइकोजन सिंथेटेज के साथ बेटा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो ये क्या बन जाता है, ये बेटा बन जाता है इनएक्टिव। सर हमें बताइए इसको हमें इनएक्टिव क्यों करना है, व्हाई वी विल इनएक्टिवेट दिस ग्लाइकोजन सिंथेटेज, बिकॉज ग्लाइकोजन सिंथेटेज एक ऐसा एंजाइम होता है बेटा जो यूज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। लेकिन इसके केस में हमें क्या करना है, हमें ग्लाइकोजन को बनाना नहीं है, नो वी हैव टू ब्रेक द ग्लाइकोजन, इसीलिए हमें बेटा इसको इनएक्टिव करना होगा। तो इससे क्या होगा बेटा, मैं इधर लिख लेता हूं, इससे बेटा जो हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस होगी वो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होगी बेटा, वो इनहिबिट होगी। इसका मतलब है ग्लाइकोजन अब नहीं बनेगा,
दिस इज द फर्स्ट रोल दैट इज परफॉर्म्ड बाय द प्रोटीन काइनेज। सेकंड बेटा इसका काम ये होता है बेटा कि ये क्या करता है बेटा, ये और एक इंपॉर्टेंट एंजाइम को बेटा एक्टिवेट करता है। उस एंजाइम को हम बेटा बोलते हैं फॉस्फोराइलेज, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ फॉस्फोराइलेज काइनेज, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ फॉस्फोराइलेज काइनेज। ये फॉस्फोराइलेज काइनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है इन द इनएक्टिव फॉर्म। ये प्रेजेंट होता है बेटा इन द इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है बेटा। लेकिन जब ये प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, ये फिर से वही करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा। जब इसके साथ इस फॉस्फोराइलेज काइनेज के साथ बेटा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा बेटा आपका एक्टिव फॉर्म। ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं बेटा, तो ये कन्वर्ट होगा इनटू द एक्टिव फॉर्म। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया अच्छे से? ओके, तो क्या होगा बेटा, तो इसको मैं कलर यूज कर लेता हूं, तो इसके साथ बेटा ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। लेकिन ख्याल रखेंगे आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है, अगर मैं बात करूं बेटा ये प्रोटीन काइनेज क्या है, ये एक एंजाइम है जो बेटा फॉस्फोराइलेशन करता है। हर एक एंजाइम के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट जरूरी होना चाहिए, और वो जिसको हम बेटा बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर जो इस एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन एक्ट करता है एज ए कोफैक्टर। जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में पढ़ाया था कि जो एडिनिलेट साइक्लेज होता है, एडिनिलेट साइक्लेज का काम बेटा ये होता है कि वो एटीपी को कन्वर्ट करता है कैंप में, लेकिन उस एडिनिलेट साइक्लेज को भी एक कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो कोफैक्टर जो होता है that is beta called as मैग्नीशियम आयन। याद रखिए बेटा। सो इफ आई विल टेल यू, कल आपके नीट में पूछा जाएगा क्वेश्चन, एडिनिलेट साइक्लेज इज एन एंजाइम दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्शन ऑफ एटीपी इनटू अ सेकंड मैसेंजर दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। फॉर दिस रिएक्शन वी नीड ए कोफैक्टर। दिस एडिनिलेट साइक्लेज जो है, जो एक एंजाइम है, ये इसको एक कोफैक्टर की जरूरत होती है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कोफैक्टर? सो योर आंसर शुड बी बेटा मैग्नीशियम आयन। अगर इसकी बात करें, ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो है, इसको भी एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है जिसको हम कोफैक्टर बोलते हैं, और वो क्या कोफैक्टर होता है बेटा, कैल्शियम आयन। ओके बेटा, नाउ अब ये जो फॉस्फोराइलेज काइनेज है बेटा, अब ये एक्टिव हो गया। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूं। अब ये जो आपके पास फॉस्फोराइलेज, ये जो आपके पास फॉस्फोराइलेज काइनेज होता है जो कि अब एक्टिव हो गया। एक्टिव ये इसलिए हो गया क्योंकि इसके साथ बेटा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया विद द हेल्प ऑफ बाय द एंजाइम दैट इज कॉल्ड बेटा प्रोटीन काइनेज। अब ये फॉस्फोराइलेज काइनेज क्या करता है बेटा, ये इन टर्न क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है किसको बेटा, ये कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन, GLYCOGN, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, जिसको हम बेटा बोलते हैं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज, इसका और एक नाम है, इट इज सिंपली कॉल्ड एज द फॉस्फोराइलेज बी। इट इज आल्सो कॉल्ड एज और में लिख लेता हूं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द फॉस्फोराइलेज बी। इसको ये कन्वर्ट किया जाता है इनटू द ग्लाइकोजन, इनटू द एक्टिव फॉर्म, एंड द एक्टिव फॉर्म इज बेटा द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ठीक है, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द फॉस्फोराइलेज ए। तो क्या मैं बोल रहा हूं, ये जो बेटा आपके पास फॉस्फोराइलेज काइनेज होता है, जो एक एंजाइम होता है, ये भी क्या करेगा बेटा, ये भी एटीपी जो होगा, एटीपी विल बी कन्वर्टेड इनटू एडीपी, प्लस निकलेगा वहां फॉस्फेट, वही फॉस्फेट इसके साथ बेटा क्या होगा, अटैच होगा। जब ये इसके साथ अटैच होगा ये फॉस्फेट ग्रुप, तब जाके ये कन्वर्ट हो गया इनटू द एक्टिव फॉर्म। अगर मैं इसकी बात करूं, इट इज अ इनएक्टिव फॉर्म। व्हाई? बिकॉज इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है। तो ये फॉस्फोराइलेज काइनेज क्या करता है, ये इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच करता है। जब फॉस्फेट ग्रुप बेटा इसके साथ अटैच हो गया, तब जाके बेटा ये कन्वर्ट होता है। ओके बेटा, उसके बाद अब ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है, ये बेटा क्या करता है बेटा, ये बाद में क्या करता है, ये हमारे पास जो ग्लाइकोजन अब होता है, जो बेटा अब ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को ये बेटा कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज, GLU, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में।
ठीक है बेटा, इसको ये डिग्रेड करता है, इसको ये ब्रेक करता है। ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है एंजाइम, ये आपके ग्लाइकोजन को तोड़ता है। एज अ रिजल्ट वहां से निकलता है आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। उसके बाद फाइनल रिएक्शन है ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है बेटा, ये फिर इसको क्या हो जाता है, इट इज देन एक्टेड अपॉन बाय अ स्पेशल एंजाइम एंड द नेम ऑफ एंजाइम इज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस। दैट इज बेटा कॉल्ड एज द फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस। ये फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस क्या करता है, ये बेटा इसको कन्वर्ट करता है इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है बेटा, तो ये इसको कन्वर्ट करता है इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके बेटा, उसके बाद लास्ट रिएक्शन जो इसमें बेटा होती है वो ये होती है, अब ये जो आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, ये फिर कन्वर्ट किया जाता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू द, एक तो यहां से निकलता है बेटा आपका फॉस्फेट, एक तो निकलता है फॉस्फेट प्लस निकलता है बेटा आपका क्या, यहां से निकलता है बेटा आपका ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज बेटा कॉल्ड एज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस। दैट इज बेटा कॉल्ड एज, उसको हम बेटा बोलते हैं glucose, that is better called as a glucose 6 phosphatase। ओके बेटा, तो अब ये ग्लूकोज आपका एक बार ये मतलब बन गया, ये फिर किसको फिर रिलीज किया जाता है, इट इज देन बेटा रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इट इज देन रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके बेटा, तो ये आप बेटा याद रखेंगे। दिस इज हाउ द एपिनेफ्रिन लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन। अब इसको मैं सम अप कर लेता हूं। देखिए बेटा, पहले क्या होगा, ये जो हार्मोन है दैट इज कॉल्ड एपिनेफ्रिन, ये बाइंड होगा आपके एक रिसेप्टर से के साथ, उस रिसेप्टर का नाम है GPCR। ठीक है बेटा, जो ये इसके साथ बाइंड होता है तो इस GPCR में कन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाती है। एज अ रिजल्ट जो उसके साथ अल्फा सब यूनिट होता है जिसके साथ अटैच होता है बेटा GDP, वो डिसोसिएट होता है और वो अटैच होता है एक इंपॉर्टेंट एंजाइम के साथ जिसका नाम है बेटा एडिनिलेट साइक्लेज। ठीक है बेटा, जो ही एडिनिलेट साइक्लेज एक्टिवेट हो गया तो फिर वो इंटर्न क्या करता है, वो ATP को कन्वर्ट करता है इनटू अ सेकंड मैसेंजर एंड दैट सेकंड मैसेंजर इज कॉल्ड कैंप, जिसको हम बेटा बोलते हैं कैंप। कैंप एक्ट करता है एज अ सेकंड मैसेंजर। आपका एडिनिलेट साइक्लेज जो है वो इवन एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ एडिनिलेट साइक्लेज कैन एक्टिवेट 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कैंप। ठीक है बेटा, एक बार कैंप बन गया, फिर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कैंप जो है वो बाइंड होते हैं आपके एक इनएक्टिव एंजाइम से जिसका नाम है बेटा प्रोटीन काइनेस। जब ये कैंप 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैंप इस इनएक्टिव प्रोटीन काइनेस के साथ बाइंड होते हैं तब जाके वो कन्वर्ट होता है इनटू एक्टिव फॉर्म एंड दैट एक्टिव फॉर्म इज अगेन कॉल्ड प्रोटीन काइनेस एंजाइम। फिर ये प्रोटीन काइनेस एंजाइम क्या करता है, ये 2 इंपॉर्टेंट मतलब फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक तो कि ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है बेटा, कैसे, बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम दैट वी कॉल एज अ ग्लाइकोजन सिंथेटेस। तो ये प्रोटीन काइनेस क्या करता है, जो ग्लाइकोजन सिंथेटेस होता है वो नॉर्मली एक्टिव फॉर्म में होता है, ये आप याद रखिएगा, वो नॉर्मली एक्टिव फॉर्म में होता है, उसको ये कन्वर्ट करता है इनटू द इनएक्टिव फॉर्म। कैसे, बाय सिंपली एडिंग द फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, दूसरा काम इसका क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है बेटा प्रोटीन काइनेस, ये फॉस्फोराइलेज काइनेस को जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसको फिर कन्वर्ट करता है किसमें, जो आपके पास फॉस्फोराइलेज काइनेस की जो एक्टिव फॉर्म होती है उसी में इसको ये कन्वर्ट करता है। फिर ये फॉस्फोराइलेज काइनेस क्या करता है, ये फिर इस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को, जिसका दूसरा नाम है फॉस्फोराइलेज बी, इसको बेटा कन्वर्ट करता है इनटू द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। हाउ, बाय सिंपली एडिंग हियर फॉस्फेट ग्रुप। हु विल डोनेट दिस फॉस्फेट ग्रुप, ATP। तो यहां पर क्या होगा, जो बेटा आपके पास ATP है, ATP विल बी कन्वर्टेड इनटू ADP प्लस द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यही फॉस्फेट यहां पर बाइंड होता है जिसकी वजह से ये एंजाइम एक्टिवेट होता है। ओके बेटा, उसके बाद एक बार ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट हो गया, फिर ये एक्ट करता है किस पे, इस ग्लाइकोजन पे, और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है इनटू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दैट इज बेटा कॉल्ड एज दिस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। फिर ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है इट इज देन कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेशल एंजाइम दैट इज बेटा कॉल्ड फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस।
ओके बेटा, लास्ट में क्या होता है, यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है बेटा, ये फिर कन्वर्ट होता है। एक तो ये फॉस्फेट जो है ना, ये वाली जो रिएक्शन है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इट इज व्हाट, इट इज एन आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और इसमें क्या डिफरेंस है, इसके कार्बन नंबर फर्स्ट पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो यहां पर बेटा आपके पास कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और यहां पर जो कार्बन नंबर 6 है वहां पर बेटा आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो इनकी जैसे रीअरेंजमेंट हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप का, फ्रॉम कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 6। Finally, a glucose 6 phosphate is then acted upon by the last enzyme that is called beta glucose 6 phosphatase. As a result यहाँ से phosphate निकलता है और ग्लूकोज निकलता है, यही ग्लूकोज फिर इसको फिर रिलीज किया जाता है किसमें बेटा, ब्लड स्ट्रीम में। एज ए रिजल्ट ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की लेवल है ना बेटा, ग्लूकोज की लेवल क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। This is the mechanism of beta hormone action. By this lecture we have almost completed this chapter from the grade 11th that was all about chemical control and coordination. इसमें फिर से बेटा फिर क्रॉस चेक करूंगा, देखूंगा मैं अगर इसमें कोई ग्लैंड बचा हुआ है तो उसको भी हम बेटा अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आप याद रखेंगे ग्लाइकोजेनेसिस क्या होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जैसे मैं कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल पहले है आपके पास फॉर एग्जांपल बेटा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब सर क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस बेटा वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द पायरुवेट। ओके बेटा, ये हो गई पहली टर्म। सेकंड है बेटा आपके पास ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब सर क्या हुआ, ग्लाइकोजेनेसिस वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आपका ग्लूकोज जो है, जब आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इनटू द ग्लाइकोजन, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ ग्लाइकोजेनेसिस। इसके लिए जो हार्मोन रिस्पांसिबल होगा, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज की लेवल कम होती है, तो उसके लिए जो हार्मोन रिस्पांसिबल होगा वो कौन होगा बेटा, दैट यू आर ऑल अवेयर, दैट इज व्हाट वी कॉल द इंसुलिन, INSULIN, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। थर्ड है आपके पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, जब आपका ग्लाइकोजन जो एक पॉलीसेकेराइड होता है, जब वो बेटा कन्वर्ट होता है आपके ग्लूकोज में, और इसके लिए जो हार्मोन रिस्पांसिबल होता है वो नॉर्मली एक तो ग्लूकागॉन होगा, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द अल्फा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज अलोंग विद दिस स्पेशल हार्मोन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड व्हिच इज बेटा कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन। और एक टर्म इससे रिलेटेड है, that is beta called as that is beta called as gluconeogenesis। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये हुआ जब आपके नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द दिस व्हाट वी कॉल द कार्बोहाइड्रेट में। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन है आपके पास, मतलब जैसे कुछ मतलब ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, अगर वही प्रोटीन या अमीनो एसिड्स कन्वर्ट होते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट में, दैट इज बेटा कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर आपके पास पायरुवेट है, PYUR पायरुवेट है, अगर आपके पास बेटा फॉर एग्जांपल ग्लाइसरॉल है, अगर ये बेटा कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, दिस प्रोसेस इज बेटा कॉल्ड एज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह देखेंगे हम आगे और एक हम चैप्टर उठाएंगे, या मैं इसमें क्रॉस चेक कर लेता हूँ कौन सा और सा इसमें कोई ग्लैंड तो बचा नहीं है, उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।